अंकित। यस मैम। यस मैम, आमिर। जी। अंकित की कॉपीज आज आज डिस्कस करते हैं। अंकित की कॉपीज हम दोनों डिस्कस करेंगे, हिमांशु और मैं। ओके मैम। जी मैम। हिमांशु, तुम स्टार्ट कर लोगे? यस मैम, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करूंगा। ओके। क्वेश्चन है, ब्रीफली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन स्कॉलर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इन एंशिएंट इंडिया एंड हाउ डिड देयर टीचिंग शेप द इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ द टाइम। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट है। जैन जैन स्कॉलर और बुद्धिस्ट स्कॉलर ने फिलोसॉफिकल थॉट को एंशिएंट इंडिया में कैसे इम्पेक्ट किया, और सेकंड पार्ट है कि इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप क्या चेंज एट द टाइम पे क्या था। तो यहाँ पे अंकित ने जो फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन जो बताया है वो फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ, आपने उन दोनों को डिफरेंशिएट किया है आंसर्स में। आपने आपने एक तरफ बुद्धिस्ट स्कॉलर और एक तरफ जैन स्कॉलर्स लिख दिया। यस सर। बट सर, हियर स्पेसिफिकली द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट कैसे डेवलप हुआ। तो वी हैव टू कनेक्ट इट टू द हिंदू थॉट, हिंदू थॉट एट द टाइम। व्हाट वाज द हिंदू थॉट एट द टाइम? अब जैसे कि जो मेटाफिजिकल थॉट था उस समय पे, वो अदर वर्ल्डली था। आपने इसको मेंशन किया है पर एंड ऑफ द क्वेश्चन में किया है। यस सर। हाँ, अदर वर्ल्डली फिलोसॉफी थॉट था, मोर इम्पोर्टेंस एंड प्लीजिंग गॉड्स। यस सर। Huh. But now, Jainism and Buddhism, what they did is they bring that philosophical thought to this world. So they talk about right conduct, right speech, right work. So that is how they have affected the philosophical thought of that time. So this is the minor connection correction by बाकी you have written it very well. और सेकंड पार्ट में जो है, जो इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ द टाइम है, उसमें भी आपने आपने दो पॉइंट बहुत अच्छे मेंशन किए हैं कि इंक्लूजन ऑफ मासेस एंड श्रेडिंग ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यस सर। सो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। बट हियर आपको जब वो इंक्लूजन ऑफ मासेस है तो वहां पे हमको एक पॉइंट और वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस ड्यू टू जैनिज्म, देयर हैज बीन डेवलपमेंट ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। ओके। यस सर। तो दिस इज एन वैल्यू एडिशन टू इट। ओके सर। बाकी यू हैव रिटन इट वेरी वेल। ओके एंड सर, तो वो एक्चुअली क्वेश्चन में आई वो मेरा दिमाग स्कॉलर्स को चला गया था तो। यस यस Yeah, and but yeah, the presentation part you have done very better because if you have you if you present in this manner, it is easy for the examiner to read the copy. यस सर। So it will definitely fetch some extra marks. ओके सर, so I tried to write in both ways in a Presenting paragraph part. A, the same question. Hello. But No, I but this is yeah. very much better because it has been Yes, I presented. myself found that Yes, this is a better question. I could revise points from here in a better way. Points are clear. So yes. But yes, it is not natural to me. I have to yeah, learn it and go through it. Okay, yeah, yeah. contribution. But if you will repeat it in similarly, if you Yes, will repeat it in next coming test, it yes, will sir. come naturally in the examination. Yes, sir. So you don't have to worry about it. Okay, Your mind will start thinking like that only. okay, sir. Thank you, sir. And now the next question. This is about the religious revivalism in the 19th century of India. Uh, it is about the religious revivalism. Here the question is asking. Let me read the question again. Discuss how religious revivalism in 19th century India was born out of sense of insecurity, while the religious reform had emerged out of reflection of nationality. Okay, so we have to show that a sense of insecurity in the initial part of our answer. Okay, so you have started the answer with the quoting directly. You have quoted religious reformers. Yes, sir. Yes, sir. Raja Ram Uh, Mohan Roy. yes, yes. Now that is a commendable introduction, but we have to show that sense of security first. Then we have to Okay, show the reform, because then only we will be following the logical flow of the question. exactly. So here we have to show the sense of security. Now, first sense of security should be insecure, sense of insecurity. Now, what would it would be? The first thing is losing to the foreign power, because few hundred Britishers had defeated ourselves, defeated such a huge country like India, and Yes, sir. specifically in the 19th century after the 1857 revolt,
there was an white supremacy. Although you have mentioned it in your answer, but the presentation has to be following the logical flow of the question. So then what will happen? The examiner will easily catch it, and it will fetch you marks. And these are the 2 points. And the third point is you have to give the examples of sense of insecurity. How this sense of insecurity. So here you have to quote that Wahhabi movement. It was a religious reform movement. No, not religious reform. It was religious revivalism. Yeah, Yes, sir. that Wahhabi movement. Also the Kuka movement in 1871 in the Punjab. Ramkrishna. You can also mention Arya Samaj. It was not initially. It was initially reformist, but it had revivalistic tones. Yes, it had revivalistic tones. So there you have to mention specifically that what part of Arya Samaj had revivalistic tones. Shuddhi movement. Yes, sir. Okay. Go back And to now we can come to the religious reform. reform. Quote Raja Ram Mohan Rai and Ishwar Vidyasagar and Dayanand. All those you have formed. You have quoted. Now in the religious reform, you have quite well answered question. Like you have covered the religious reform very broad way. But we have to give the reasoning that why the religious reform movement was Okay. what was asking it emerged out of reflection and sense of nationality. So we have to show the sense of reflection. Yes, so we have to quote Raja Ram Mohan Rai and says that he reflected that why Western society is progressing so much and why Indian society is very much backward. He saw that there is a reason-based society, that humanistic morals, but we have religious dogmas and practices which are antithetical to humanity. So here Raja Ram Mohan Rai is doing reflection, and he has a sense of nationalism because he also wants that India to progress and India to attain its place. Okay, so the reflection is based on why we are enslaved. So actually reflection and rationality है वो शायद हाँ दिखने में वो Yes, ऐसा yes, yes. rationality है. Yeah. And also that two examples you have mentioned in the reform are very good one, the Jyotiba Phule and Aligarh movement. So Okay. when we give examples in these types of question, we have to cover all of the religious reform movements and all of the religious revivalist movements. So it have to cover Hindu, Muslim, and Sikh that I have mentioned. हिमांशु एक मिनट क्या हम लोग इसको ये जो इनका आंसर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसको क्या स्क्रीन में ले सकते हैं क्या अंकित Sir, अंकित आप क्या मैं- आपने जो आंसर डिस्कस हो रहा है इसको स्क्रीन में ले सकते हैं क्या तो मैं ट्राई करता हूँ एक yes, sir. मेरे पास दूसरी डिवाइस में है सर. नहीं अंकित ट्राई कर सकते हैं अंकित ले सकते हैं सर एक बार स्क्रीन शेयर सर इसमें आ रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर तो वो अच्छा एक्चुअली ठीक एक मिनट एक सेकंड में अभी वो कर रहा हूँ एक सेकंड आई कैन शेयर द फाइल अगेन इन द टेलीग्राम ग्रुप मैं वापस से शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम ग्रुप. सर आप होस्ट हो सर, आप कर सकते हो सर. हाँ बट मैं इसमें देख नहीं पा रहा हूँ ठीक है मैं देखता हूँ कैसे मैं अलाउ कर सकता हूँ जैसे अलाउ होता है फिर आप लोग कर दीजिए तो आप तब तक आप लोग कंटिन्यू रखें ठीक है जी सर. ना इस क्वेश्चन पे रणवीर सर कुछ कहना चाह रहे हैं. सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं रणवीर का कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो कनेक्शन का रणवीर शायद सर वो उस पे उनका ऑडियो नहीं एंड उनका आ रहा कनेक्ट था. हो रहा है ओके सर. ओके सर. सो तो एक पॉइंट है अप्रोच इसी क्वेश्चन का एक अप्रोच में ये सोच रहा था कि सारे रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स के एग्जांपल्स लेके उनके पॉइंट्स बना देने हाँ या दैट इज आल्सो गुड क्योंकि वो उसमें क्या प्रेजेंटेशन आपका बेटर हो जाएगा. जब आप उन दोनों को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना हम या तो ये पूरा क्वेश्चन दो हिस्से में चल सकता है. मतलब बीच में से आप पेज डिवाइड कर दीजिए और फिर उसके बाद एक तरफ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट और एक तरफ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट. तो जब आप रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट पहले का जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप इनसिक्योरिटी के ऊपर बेस कर दीजिए. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर. और जो रिवाइवल और जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन और नेशनलिज्म के ऊपर डिस्कस कर दीजिए. उसके बाद नीचे सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर देंगे. यस सर. that's a better approach. I'll Yes, try sir. to write that. या तो
these two. रणवीर सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। सर, और मुझे लग रहा था कि मैं शायद पॉइंट्स मिस आउट कर रहा हूँ। पॉइंट्स इतने नहीं, आपने अ, देखो, जो 10 मार्कर जो क्वेश्चन, ये जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें इसमें दो पार्ट है, ठीक है? सो बोथ पार्ट विल कैरी इक्वल मार्क्स, और ईच पार्ट में आपको 4 to 5 डायमेंशन डालने की कोशिश करनी है। ठीक है। ओके, सो इन 10 marker question you have to discuss at least 8 dimensions. एटलीस्ट ये ओके। Okay, so 8 is the minimum. You can go up to 10, but depending on the word limit. But if it is a 15 marker question, then you have to discuss at least 6 dimension in each point. So it will be up to 10 to 12 dimensions of it, or 10 to 12 points, as you can say. But here you can evaluate by adding examples. After each point, you have to add examples. So it will give clarity to the mind of the examiner, and he will reward you for it. Okay. यस सर, थोड़ा सा मुझे बाद में आ रहा है कि मैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म आई वाज कंस्ट्रक्टेड टू जस्ट हिंदुइज्म एंड इस्लाम। Yeah. मैं Yes. जो सिंह सभा मूवमेंट वगैरह और ये सब बाद में मुझे याद Yeah. है। Yeah. तो, So वो पूरा उसमें जितना उसमें डायमेंशंस आपके और ऐड होंगे, इस वे में अगर आप सोचोगे, आपके डायमेंशंस और ज्यादा ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजश्री मैम, आप डिस्कस करना चाह रहे हो? हिमांशु तुम ले लो, मैं 1 मिनट में आती हूँ वापस। ठीक है। सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है GS 4 का, यस सर। दो इन एसेंस ethics seeks to achieve good, its हिमांशु एक सेकंड, relativistic nature. हिमांशु एक सेकंड, Yes, अंकित sir. मैंने इसको अलाउ कर दिया है इसके शेयरिंग का, आप जरा ट्राई करो इसको स्क्रीन में लेने का। Ethics seeks to achieve good. Its relativistic nature makes it difficult to clearly define that good. Do you think this subjectivity impedes moral growth of human beings? Analyze. So in this question, Ankit, in my point of view, you have covered each and every aspect of it. You have started by defining what does ethics means, which is very good approach to start this type of answer. And now you have आपने जो key point है इस question का वो पकड़ा है relativistic nature. So now you have defined, if you take it downwards, now you have defined what is the relativistic in good. So now you have covered 5 dimensions of relativism. So these all points are very appropriate to the questions. और इसमें आपको बस एक चीज ऐड करने की जरूरत है, जैसे कि आपने थर्ड पॉइंट में जो आपने हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म लिखा है, उसमें आपने एग्जांपल दिया है कि स्लेवरी वाज एक्सेप्टेबल बिफोर. सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल यू हैव टू गिव इन ईच एंड एवरी डायमेंशन. ओके. And you have addressed both of this. Now this is the only correction that I will address in this question. Otherwise the presentation wise, this answer is very good. If we come to the second part, in subjectivity can impede human growth, you have also covered it very well. In the last, you have summarized it by making a chart. So these type of things improve your presentation and will catch the eye of the examiner, and it is very helpful. रणवीर सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, आपने इसको काफी डिटेल में बता दिया, हम अलग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है सर, ये मेरे तीनों क्वेश्चंस मैंने किए हैं अभी, आप कीजिए सर अब। रणधीर, आपने अंकित का पेपर किया है क्या? मैं डिस्कस कर लेती हूँ कुछ। हाँ आप कर लो, मैंने ऐसे वाला किया है योगेश का, तो मैं बाद में कर लूंगा। अंकित आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट पे शायद।
हेलो अंकित, हेलो हेलो। हाँ यस अंकित, यू आर हियर? यस, आई कैन हियर यू। Yes. We will discuss the first question. Himanshu has told you how to manage the content. I will tell some generalistic things ओके, श्योर। which need to be corrected in your paper. See, GS1 is a very scoring paper. Okay, it gives you a lot of output with limited input. Just we have to keep in mind some specific points. Like in your first question, the question is, how has the trend of cyclones in Bay of Bengal and Arabian Sea changed in recent years? So the focus of question here is, and the tail word is examine. Examine means we have to discuss it in detail, right? The focus here is that how the trend is changing. All right. Now your introduction is correct. Tropical cyclones are strong wind systems that can be better, but the diagram you have drawn, although it is good, but it's not relevant here, right? Because the focus of the question is different. If the questions was focusing on the cyclones, then you could have drawn this diagram. Diagrams are very important. It fetches you one extra mark at 1.5 to 1, but it will fetch you an extra mark, but it should be relevant. Here, even if you would have shown India's map and how the Arabian Sea cyclones are increasing, that could have helped. Otherwise, your presentation is good, your depth of knowledge is very good, you know what to write, that is very, very good. You have addressed this question very nicely. One more thing I would suggest, that while presenting the answer, suppose you have written the changing trend, okay, you could shift it slightly towards left, and the rest of the answer you keep some gap. आपने क्या किया है, चेंजिंग ट्रेंड ऊपर लिखा है और Yes, नीचे थोड़ा सा लेफ्ट में 1 लिखा है, राइट? These are yes, small nitty-gritties, but it improves your presentation a lot, and that fetches marks. Trust me. You could shift that, and when you write sub points, then shift it a bit more towards right. You're okay. getting Proper, you're saying proper indentation, like shifting all the headings towards the left and one को थोड़ा सा right में करके हाँ, better। थोड़ा सा राइट में करके, क्योंकि वो बहुत सिस्टमैटिक लगेगा फिर। ठीक है, ठीक ठीक है। है, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपका तो भी दिख रहा है 1 2 3 साइड में, अगर वो भी मर्ज हो जाता, सपोज द चेंजिंग ट्रेंड आपने 1 के ऊपर लिखा होता, फिर वो बहुत मोनोटोनस दिखता। Okay, I ओके, get it. suppose this is the first answer, everyone will read it, but if suppose it is the fifth or sixth answer, then it will become very monotonous for the examiner to read. He won't read everything then. All right. Then when you're writing example, very good that you have shown it in a circle. Just shift it towards some to right, so that it is specified that it's example. वो highlight हो जाएगा फिर. Okay, Okay. okay, I get और it. आप, yes yes, और बाकी आपका जो content wise structure है, it is very good. हिमांशु ने बाकी बातें बता दी है. And in some questions I noticed that what happens is towards the end, स्पेस मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपका. Yes, तो हाँ, yes, तो मतलब वो ऊपर एकदम खुला खुला, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में ऊपर बहुत स्पेस है, वेकेंट yes, स्पेस, और नीचे फिर बहुत दब रहा है. तो क्या होता है yes, ना, इतना कंजेस्टेड होगा ना, तो वन वोंट टेक एफर्ट्स टू रीड एवरीथिंग, ऑल्दो योर पॉइंट्स आर वेरी गुड. लेकिन फिर ये थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट का, लेकिन वो 1 2 पेपर आप लिखोगे तो आपका हो जाएगा. ठीक है मैम। Otherwise, your content is very good, and you're good to go. Just keep आप GS1 में, और मतलब सभी पेपर्स में लागू होता है, लेकिन GS1 में ना keep मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स या अलग अलग फैक्ट्स या छोटे छोटे डायग्राम्स, जैसे कि टॉपर्स नोट से डायग्राम उठाइए, वो बहुत हेल्प करती है. यस मैम, आई वाज सीइंग, आपने बताया था तो उसके बाद मैं ये वाहब सर करके रैंक 7 लास्ट टाइम अराउंड, और उनका यस पेपर यस देख, सो जी, ही हैड इवन अ स्मॉल पॉइंट के लिए अगर डायग्राम अवेलेबल है उनके दिमाग में आ रहा है तो वो हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम है। हाँ, एंड एनी रैंडम डायग्राम वर्क्स. मतलब ऐसे नहीं कि बहुत स्ट्रक्चर्ड डायग्राम चाहिए, कुछ भी डायग्राम बना तो बस रेलेवेंट होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए. यस, जैसे कि आपने अभी यहाँ पे इंडिया का मैप दिखा के 1 2 साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल के दिखा दिए होते, और 4 5 साइक्लोन्स
अरेबियन सी के दिखा दिए होते, आपका आंसर वहीं पे आ रहा है, मतलब एग्जामिनर को पता है इसको क्या पूछा गया है, वो समझ रहा है, यस राइट, मैम। कि अरेबियन सी के बढ़ रहे हैं साइड, हाँ हाँ। so that was relevant here, got it? ओके। हाँ, and your conclusion is good. Just try to maintain कि बाकी intros और conclusion पे ज्यादा ध्यान दो, because they are the most important part of your answer. और फिर बाकी जो diagrams वगैरह है उससे पता ही चल जाता है. You just need to show that you have understood the question and you are serving the demand of the question. Rest everything is very good. ओके Yeah, and if you have any doubts, you can ask us all. मैम, थोड़ा सा वही था कि एथिक्स में अभी थोड़ा सा चालू किया एंड थोड़ा सोशो में भी टाइम जा रहा है। तो एथिक्स में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एग्जाम्पल्स एकदम से मिलते नहीं, या फिर मिलते Exam हैं तो आई आई एंड अप राइटिंग कपल ऑफ लाइंस अबाउट दैट एग्जाम, उसको कट शॉर्ट करके थोड़ा सा फ्रेज में लिख दिया कि वो समझ में दिया एंड इट इज पुटिंग अक्रॉस द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू। You're तो not वो उससे clear, थोड़ा Ankit. मुश्किल You could be a bit more clear. Adjust your mic, maybe. एक मिनट मैम। एथिक्स, हेलो हाँ हाँ, बोलो. मैम, एथिक्स में एग्जाम्पल्स इकट्ठे करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, या उसको एग्जाम प्रेजेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा एथिक्स के एग्जांपल्स के लिए इन लास्ट सेशन आई टोल्ड वेरी गुड टू सोर्सेस. फर्स्ट इज जो शून्य आईएएस है, है। यस उनके मैम। का सारा मटेरियल नहीं, उनका बस एक बुक आता है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप वो बुक लीजिए, यू विल गेट कंटेंट फॉर ऑल द 4 पेपर्स. और उसमें हर एक क्वेश्चन में एथिक्स के कम से कम उन्होंने 8-10 एग्जाम्पल दिए हैं. यू कैन जॉट डाउन ऑल दोज एग्जाम्पल्स. आपका एक 50 एग्जाम्पल्स का ये बन जाएगा बुकलेट, और देन यू कैन पिक एंड चूज आंसर राइटिंग करते वक्त, तो आदत भी लग जाएगी. एंड ठीक एथिक्स है। का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप आंसर राइटिंग करोगे ना, उतना पॉलिश होते जाता है आपका आंसर्स या कंटेंट भी, तो वो हो जाएगा. और कंटेंट की अगर आपको दिक्कत आ रही है एग्जांपल्स की, तो दैट शून्य आईएएस का बुक इज वेरी गुड सोर्स. बहुत रेलेवेंट एग्जांपल्स दिए उन्होंने, और वैल्यू वाइज दिए, मतलब किस सिचुएशन पे कौन सा एग्जांपल डालना है वो समझ जाएगा अगर आप वो रेफर करोगे तो. एंड श्योर मैम। सेकंड इज महक जैन नोट्स, दे आर वेरी गुड. एथिक्स के ओके। नोट्स है, कुछ 4-5 पेजेस के हैं. उन्होंने सारे फ्रेजेस या जो डायग्राम्स रेलेवेंट है एथिक्स की, जो भी एग्जांपल्स है, वो बहुत कंसाइज मैनर में दिए हुए हैं, आप वो रेफर कर सकते हो. और रणवीर भी आपको एथिक्स के बारे में ज्यादा बता देंगे. ओके सर। रणवीर, रणवीर का शायद ऑडियो का वापस प्रॉब्लम हो गया है. अंकित, और कुछ डाउट्स है आपको? अभी तो नहीं मैम। वही थोड़ा एथिक्स में जैसा आपने बोला कि बार बार लिखने से रिफाइन होगा, वो अभी हाँ एक हाँ. पॉइंट को लिखने में मेरे को 3 लाइन हो रहा है, तो वो धीरे धीरे मैं कट डाउन कर रहा हूँ, रिडंडेंसी वर्ड्स हटा रहा हूँ और एंड। एथिक्स में वन मोर थिंग वर्क्स, रीड टॉपर्स कॉपीज. क्या हो यस जाता मैम। है ना, ऑल्दो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, लेकिन होता क्या है ना, वो पढ़ते पढ़ते वो चीजें इंटरनलाइज हो जाती है, तो फिर आपका भी राइटिंग स्टाइल वैसे होने लगता है. ओके। क्योंकि अभी एथिक्स के साथ एकदम पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बहुत मैकेनिकल दिख रहा है, जैसे हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ. एक किया, उसमें से मैंने एक पार्ट उठा लिया, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। आई हैव सीन सम टॉपर्स कॉपी, तो उन लोगों को एकदम मतलब लाइक फ्लो हो रहा है आज, इट्स अ ग्रेट फ्लो। मेरे में एकदम मैकेनिकल पता चल रहा है कि अच्छा ओके अरे इतना वो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस से हो जाएगा, डोंट वरी. एक काम कर सकते हो, तुम रोज एक भी आंसर लिखो ना एथिक्स का, तो भी तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी. है। ओके मैम। लेकिन टॉपर्स कॉपीज पढ़ते रहे ना, बहुत अच्छा, मतलब दैट मुझे बहुत हेल्प किया था वो. कि टॉपर्स कॉपीज पढ़ते पढ़ते मेरा फ्लो बहुत अच्छा बैठ गया है. ठीक है मैम। हाँ. और ये जो होता है ना, जो डेली आंसर राइटिंग वाले आते हैं, इंसाइट्स या टीएलपी वगैरह, तो ये लोग भी हाँ। क्वेश्चन के बाद स्ट्रक्चर देते हैं कि किस स्ट्रक्चर में तुम्हें बनाना है आंसर. तो यस उसका भी मतलब, अगर तुम वो रेफर कर रहे हो, वैसे तो सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू. एथिक्स के लिए पीवाईक्यू आर ग्रेट सोर्स, बिकॉज वैसे की वैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से फाइनल पेपर में. और सबकी गलती यही होती है कि सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं लेकिन पीवाईक्यू नहीं देखते. तो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर एथिक्स.
बाकी जीएस का तो हो जाता है, लेकिन एथिक्स में पीवाईक्यू आप अगर सॉल्व करोगे आपके पास कंटेंट भी हो जाएगा, फ्लो भी आपको समझ में लगेगा। ठीक है मैम। हाँ